Today we are going to start with your chapter that is your animal kingdom. Myself Shivani Sharma. Today we are going to start with your chapter that is your animal kingdom. If I talk about this chapter with the point of your NEET examination, so this is quite important. I know most of the you found it is quite boring. Yeah, I know boring तो है थोड़ा बहुत, but इतना भी boring नहीं है because इससे हर बार ना 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो अगर हम नीट के अकॉर्डिंग देखें तो या बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द एंटायर चैप्टर दैट इज़ योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आना ही आना है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर चैप्टर दैट इज़ योर एनिमल किंगडम. ओके, सो अगर मैं बात करूँ एनिमल किंगडम चैप्टर की, सो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? नाउ वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट दी एनिमल्स. ओके, सो क्या तुम्हारे दिमाग में आता है जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं? व्हाट कम्स इन योर माइंड? हमारे दिमाग में बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, लाइक घर में लिजर्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं और आसपास देखो डॉग, कैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं ना. तो क्या प्रॉपर्टीज़ है जो सारे एनिमल्स में कॉमन होती है? या वी ऑल्सो आर एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल, यस और नो, and we believe like we are so intelligent animals. Okay, so what are the some common properties that all the animals have? So beta, we all are multicellular without any exception. Okay, we all are what? We all are multicellular without any exception. Okay, what are the other properties that all animals have? We all show beta holozoic mode of nutrition. We all show what beta? We all have a holozoic mode of nutrition. If I'm talking about here is holozoic means I'm talking here about the mode of nutrition. Mode of nutrition means holo means beta complete. Holo means beta complete and zoic word we are using for the animals. Zoic word we are using for the animals. In this holozoic mode of nutrition, animals are taking their food completely and they digest it. Means they first ingest their food, then they digest it, then they absorb it, then they assimilate their food and they ingest their undigested food. Okay, so in the holozoic mode of nutrition, beta, basically you have 5 steps. The one is your ingestion. Ingestion means taking the food inside through your mouth. Digestion means digestion. You all know that it is your mechanical and the chemical process now, where your big molecule of the food it break down into the smaller particles. Now come to the absorption. बेटा now जो अब तुमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब करेगी. एसिमिलेट मीन्स अब खाना खाया है उसका कोई फेट तो होना ही चाहिए ना. अब बॉडी में ग्लूकोज आया है तो उसका क्या है? वो एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी काम करेगा. और बॉडी में बेटा जो डाइजेस्ट नहीं होता या जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं रखती, वो उसे बाहर फेंक देती है, उसे बेटा रिमूव कर देती है बॉडी से. तो लास्ट स्टेप इज योर इजेशन. एंड वी ऑल आर व्हाट बेटा? वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक. वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक. What is heterotrophic? Means we all are dependent on others we all are dependent on other for our food requirement. हमारे अंदर मैजिक तो नहीं है कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं प्लांट जैसे. नो ना, मेरे को तो नहीं लगता कोई एनिमल ऐसा है जिसके अंदर जादू वादू हो रहा है कि खुद खाना बना रहा है. नहीं, वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक. हम ही देखो यार, हम भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे. हमें मिल्क रिक्वायरमेंट है एग से, तो हम पॉल्ट्री एनिमल्स पे डिपेंड्स होंगे. अब फिर मिल्क रिक्वायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन दी लाइक काउ, कैटल्स, बफेलोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So we are dependent on others for our food requirement. That mode of nutrition is known as the heterotrophic. These are the some common properties that you show in all animals without any exception. और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक हम सब ग्रोथ शो करते हैं, हम सब में डेवलपमेंट्स होती हैं, हम सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तभी तो कंटिन्यूटी एक बन रही है ना. सो ये सब एक बेटा कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एनिमल्स की होती है. ओके, सो नाउ बेटा योर किंगडम एनिमेलिया. Your kingdom Animalia is divided into the 2 parts. Is divided into the 2 kingdom. Your first is your beta Parazoa. The first is your Parazoa and the second is your Eumetazoa.
The first is your beta parazoa and the second is your eumetazoa. Parazoa what? P for what beta? P for primitive. And zoa word, as I told you, zoa word we are using for the animals. So in this particular kingdom, you have those animals who comes on the earth for the very first time. Yes, बेटा देखो क्या हुआ था जब इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, अपन ऐसे ही नहीं आ गए हैं धरती पे। जब इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था तो बेटा यहाँ पर केमिकल्स थे, ठीक है, केमिकल्स थे बेटा, केमिकल्स रिएक्शन हुई, उनमें वो कंपाउंड्स बने, कंपाउंड्स बेटा एसिमिलेटेड हुए, फिर वो सेल्स बने, सेल्स के बाद टिश्यू आया, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स आए, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। हम बेटा दैट्स हाउ मैं ऐसी अब तुम्हारे सामने खड़ी हुई इस तरह से। इवोल्यूशन बेटा केमिकल से होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो बेटा दे आर दी, ये वो एनिमल्स हैं जो इवोल्यूशन के बाद सबसे, जब इवोल्यूशन हो रहा था ये सबसे पहले आए थे। सो दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी, क्योंकि प्रिमिटिव है ना, सबसे पहले आए थे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थे, क्योंकि हमेशा चीज़ें बेटा सिंपल चीज़ों से ही शुरू होती है। वाई वी कंसिडर आवर सेल्फ एज अ कॉम्प्लिकेटेड एनिमल? बिकॉज वी हैव ऑल दी थिंग्स, we have cell, we have tissue, we have organ, we have proper organ system. For the respiration, we have a respiratory system. For the excretion, you all have a excretory system. Yes or no? Am I right now? So beta, these are the primitive animals, means they are those animals who appear for the very first time on the earth, okay? And they have cells on their body. They have only cells in their body. Beta, what are the organisms, what are the particular phylum that comes under your subkingdom Parazoa? So example is your beta phylum Porifera. Example is your phylum Porifera. Beta Porifera, it is the poorest phylum. Why I am calling so poorest phylum? बेचारा फाइलम में बेटा सिर्फ सेल्स होते हैं इसकी बॉडी में और कुछ भी नहीं है, इवोल्यूशन पे सबसे पहले आया था। योर किंगडम एनिमेलिया, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द वन इज योर, आई एम राइटिंग इट हियर, द सब किंगडम पैराजोआ एंड हियर यू हैव अ सब किंगडम यूमेटाजोआ। Here you have a subkingdom Eumetazoa. Now come to the beta subkingdom Eumetazoa. Eu means beta true. Meta means beta multicellular. Zoa means beta animals. Here you have a true multicellular animals. इनमें बेटा कॉम्प्लिकेशंस देखी गई, सेल्स एसिमिलेटेड हुए, वो टिश्यू बनी, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू योर ऑर्गन सिस्टम, ओके। सो यहाँ पर व्हाट यू हैव बेटा, यू हैव हेयर फाइलम Ceriantrata. You have here beta Ceriantrata. You have beta Ctenophora. You have beta Platyhelminthes. Platyhelminthes also known as the Nemathelminthes. You have Esculmenthes. What you have beta? You have Annelida. You have Arthropoda. You have Mollusca. You have Echinodermata. You have Hemichordata. And then you have beta Chordata. Then you have what beta? Then you have a Chordata. So your subkingdom Eumetazoa have a phylum Ceriantrata, Ctenophora, Platyhelminthes, Esculmenthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, and your Echinodermata, your Hemichordata, and the Chordata. You have to learn this sequence that is start from the Ceriantrata to the Chordata. Okay, your kingdom Animalia have two parts: the subkingdom Eumetazoa and your Parazoa and the Eumetazoa. In the subkingdom Parazoa, you have phylum Porifera, and in the subkingdom Eumetazoa, you have phylum Ceriantrata up to Chordata. Okay, now talk about the beta basis of classification. Now talk about the basis of classification.
बेटा वाई वी टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, क्या ज़रूरत पड़ी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए? सी बेटा, अगर देखो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पेन्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें मल्टी कलर के पेन्स हैं, और मैं आप लोगों को बोलूँ कि उसमें से रेड कलर का पेन लेकर आओ, और वो पेन मतलब ऐसी अनअसेंबल्ड मैनर में पड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या करोगे? आप जाओगे, उसे सर्च करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। यस और नो? सो अगर मैं क्या करती, अगर मैं ऑलरेडी उन पेन को अलग अलग मैनर में अरेंज कर देती कि लाइक रेड कलर पेन दैट साइड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, एक्सेट्रा है ना, एंड देन मैं आपको बोलती कि बेटा जाओ पेन लेके आओ, तो यू चूज दैट रेड पेन एंड आप लेके मुझे आके दे देते, है ना, टाइम सेव हुआ आपका। सो बेटा देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन आवर प्लैनेट अर्थ। सो बेटा अगर कल को कोई बंदा नया एनिमल डिस्कवर करता है तो आप कौन से फाइलम में रखोगे? इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ना। आप ऐसे ही तो नहीं है कि अगर किसी के फीचर्स कोऑर्डिनेट जैसे हैं तो आप एकाइनोडर्मेटा में रख के खुश हो रहे हो, हाँ हाँ हमने डिस्कवरी कर दी। इट्स नॉट पॉसिबल ना बेटा, क्योंकि आपकी डिस्कवरी का मतलब ही क्या रह गया, है ना। तो उसके लिए हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करा, सो डेट अगर हम कल को कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उसके फीचर्स को देख के हम उसे उस पर्टिकुलर फाइलम में प्लेस कर दें। सपोज वो किसी फाइलम से मैच नहीं कर रहा तो हम उसके लिए अलग फाइलम बनाएंगे। इज दैट क्लियर? आप देखो बेटा, अगर क्लास में टीचर होता है, टीचर किस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, या अगर मैं टीचर ही ऑब्वियसली, अगर मैं बच्चों को आइडेंटिफाई करूँगी तो मैं कैसे करूँगी? मैं उनकी मार्क्स के बेसिस पे करूँगी, जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो इधर, जिसके कम है वो ऐसे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, तो टीचर्स का तो यही फेवरेट क्राइटेरिया होता है बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने का। सो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या थी हमारी एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए? द फर्स्ट इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the first is your level of organization, the second is your germ layer, and the third is your body plan. Okay, the third is your body plan, and next beta is your symmetry. Next is your beta symmetry, then beta is your segmentation, and then beta is your presence of the notochord. Okay, and yes, one we have also silo. Okay, don't forget the silo. So beta basis of classification can be done on your level of organization, germ layer, body plan, coelom, symmetry, segmentation, and the notochord. One by one we will discuss each and every basis of classification, and we also see the example what comes under the each and every part. Okay, so the first we have, that is your level of organization. That we have beta level of organization. In the level of organization बेटा मतलब क्या है level of organization का? Level of organization का मतलब ये है, इसमें हम देखेंगे बेटा level of organization में कि किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स हैं, किसके पास टिश्यू है, किसके पास ऑर्गन है, किसके पास ऑर्गन सिस्टम है। ओके, सो इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट वी हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, then we have beta organs, organ level of organization, organ level of organization, then we have beta organ system, then what we have last, that we have the organ system. Okay, मैंने आपको इनिशियली एक बात बोली थी कि हम लोग ऐसे ही धरती पे प्रकट नहीं हो गए हैं, हम अच्छा खासा इवोल्यूशन शो करके आए हैं। ओके, इनिशियली हमारे पास बेटा क्या थे? केमिकल्स थे। क्या थे? केमिकल्स थे। अर्थ पे जब अर्थ में इवोल्यूशन हो रहा था, केमिकल्स असेंबल्स हुए, कंपाउंड्स बने। कंपाउंड्स के बाद बेटा सबसे पहली जो चीज़ बनी वो क्या थी? सेल्स। और सेल्स से कौन बने आपके? पॉरीफेरा। सेल्स के बाद आपके पास क्या आया बेटा? टिश्यू आया। टिश्यू के बाद बेटा क्या आया? ऑर्गन साइड। ऑर्गन के बाद बेटा क्या आया? ऑर्गन सिस्टम आया। ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा क्या आया? ऑर्गन सिस्टम के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। ऐसे अपन लोग आए हैं, ऐसे इस तरह से हम आए हैं। ठीक है, अब देखो
अगर ये ऐसा लग रहा है, एक छोटा बच्चा होता है, उसे जब हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले क्या सीखता है? लेटर सीखता है, ABCD, ये सर नो। वो लेटर सीखते सीखते बेटा वो वर्ड्स बनाना सीखता है, ये सर नो। वो लेटर्स को असेंबल्स करता है, वर्ड्स बनाना सीखता है, वर्ड्स को असेंबल करता है, सेंटेंस सीखता है, सेंटेंस को असेंबल करता है बेटा पैराग्राफ बनाता है, पैराग्राफ बनाता है, चैप्टर बनाता है, चैप्टर बनाने के बाद वो बेटा रीडिंग सीखता है। ऐसे ही हमारा इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखी गई? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू इनिशियली, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चा किस में मिलेगा? जिनके पास सिर्फ सेल्स होंगे बॉडी में। और ऐसी पोएस्ट फाइलम कौन है? पॉरीफेरा। द एग्जाम्पल इज योर पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा for the very first time, tissue level of organization was seen in the phylum Coelenterata. And one more thing, tissue term was coined by which scientist? That is your Biket scientist. Which scientist, beta? I am writing it here in the corner. Okay, tissue term was first coined by your scientist, which is your Biket. Okay, now beta, tissue level of organization, example of your Coelenterata and the Ctenophora. बेटा Coelenterata और Ctenophora को ऐसे समझो, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। Coelenterata मिल रहा है ना, Ctenophora मिलेगा ही मिलेगा। यकीन नहीं आ रहा ना, तो नेक्स्ट जब एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना तब देख लेना। अब बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन example is your Platyhelminthes. For the very first time we have seen organ level of organization in the phylum of your Platyhelminthes. Please put a star mark on that. Okay, जो से सबसे पहले जिसमें देखी जाए वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट बेटा ऑर्गन सिस्टम किस में देखा गया? It's seen is your Aschelminthes up to chordates. Aschelminthes up to chordates. बेटा मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, अब तुम सीक्वेंस याद कर लेना। Aschelminthes up to chordata में लिखने के लिए मिलेगा। मीन्स Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and your Chordata. Okay बेटा। Next बेटा, the germ layer or the coelom. These things we will discuss further in our next class. Okay, that's it for the today. We'll meet in our next class. Bye, take care.